اسرائیل حماس تنازع عارضی جنگ بندی کے خاتمے کے بعد اسرائیلی فوج نے ایک بار پھر غزہ پر وحشیانہ حملے شروع کر دیے۔ صہیونی فوج کی رفح، غزہ سٹی، خان یونس، جبالیہ اور شجاعیہ کے اطراف میں بمباری، 175 فلسطینی شہید۔ تفصیلات دیکھیے۔ عارضی جنگ بندی میں توسیع نہ ہو سکی، اسرائیلی فوج ایک بار پھر غزہ کا نام و نشان مٹانے پر تل گئی۔ صہیونی فوج نے غزہ شہر میں ہاسپٹلز، پناہ گزین کیمپس، رہائشی عمارتوں پر ایک بار پھر سے بمباری شروع کر دی۔ صہیونی فوج نے رفح، غزہ سٹی، خان یونس، جبالیہ اور شجاعیہ کے اطراف میں رہائشی عمارتوں اور پناہ گزین کیمپس پر بمباری کی، درجنوں فلسطینی شہید جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوج نے ایک بار پھر غزہ میں جانے والی امداد روک دی ہے۔ غزہ کے 17 لاکھ سے زائد شہری امداد کے منتظر۔ اسرائیلی فوج نے سینکڑوں ٹرک رفح کراسنگ پر روک دیے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج غزہ میں امداد داخل نہیں ہونے دے رہی۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی معاہدہ 24 نومبر کو ہوا تھا، جس میں دوبارہ توسیع ہوئی۔ تاہم اب اسرائیلی حکومت نے جنگ بندی میں توسیع نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے ایک بار پھر سے حملے شروع کر دیے ہیں۔ اسرائیل حماس تنازع عالمی رہنما ایک بار پھر غزہ میں جنگ بندی کے لیے سرگرم۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ امن کی طرف واپسی کے مقصد سے مذاکرات جاری ہیں۔ برازیل کے صدر نے عرب میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ بائیڈن غزہ میں جنگ بندی کے لیے سنجیدہ نہیں۔ تفصیلات دیکھیے۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ ماجد الانصاری کا کہنا ہے کہ امن کی جانب واپسی کے مقصد سے مذاکرات جاری ہیں۔ صورتحال کو دوبارہ پرامن کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اسرائیلی فوج کے حملے ثالثی کی کوششوں کو مزید پیچیدہ بناتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ، اسرائیل، مصر اور قطر کے ساتھ غزہ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جنگ بندی کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ اسرائیلی حکومت عام شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ ترجمان حماس اسامہ حمدان نے کہا ہے کہ اسرائیل نے جنگ بندی کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں کو مسترد کیا۔ اسرائیل نہیں چاہتا کہ جنگ بندی میں توسیع ہو۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ ناصر کنانی کہتے ہیں کہ اسرائیل نے غزہ میں جنگ بندی کا خاتمہ امریکہ کی حمایت حاصل ہونے کے بعد کیا ہے۔ امریکہ اسرائیل کے حملوں میں برابر کا شریک ہے۔ ادھر برازیل کے صدر نے غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن جنگ بندی کو لے کر سنجیدہ نہیں ہیں۔ اگر امریکہ چاہے تو فوراً جنگ بندی ہو سکتی ہے۔ ترک صدر کی اماراتی صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات۔ حماس اسرائیل جنگ دوبارہ آغاز پر بات چیت کی گئی۔ مسلم دنیا کو متحد ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ملاقات کوپ 28 سمٹ کے دوران سائیڈ لائن پر ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ دوسری جانب اس پر روکنا چاہیے۔ ترک صدر کی اماراتی صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات۔ حماس اسرائیل جنگ کو دوبارہ آغاز پر بات چیت کی گئی۔ مسلم دنیا کو متحد ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ملاقات کوپ 28 سمٹ کے دوران سائیڈ لائن پر ہوئی۔ آگے بڑھیں گے، بات کریں گے حماس اسرائیل جنگ بندی کے بعد دوبارہ حملوں پر عالمی اداروں کا رد عمل۔ اسرائیل کی غزہ کے خلاف جنگ تباہ کن ہے۔ غزہ اسرائیلی حملوں سے لگتا ہے بچوں کے دوبارہ قتل عام کی منظوری دے دی گئی۔ غزہ میں اسپتالوں کے مناظر ہارر فلم جیسے ہیں، یہ کہنا ہے عالمی ادارہ صحت کا۔ حماس اسرائیل جنگ بندی کے بعد دوبارہ حملوں پر عالمی اداروں کا رد عمل۔ اسرائیل کے غزہ کے خلاف جنگ بندی کے پر زور دیا گیا۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں سے لگتا ہے بچوں کے دوبارہ قتل عام کی منظوری دے دی گئی۔ غزہ میں اسپتالوں کے مناظر ہارر فلم جیسے ہیں۔ آگے بڑھ کے بات کریں گے، نیب نے 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل میں چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سمیت 8 ملزمان کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا۔ احتساب عدالت کے رجسٹرار آفس نے ریفرنس کی جانچ پڑتال شروع کر دی۔ نیب نے ریفرنس کے تمام ملزمان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل میں ریفرنس دائر۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں دائر ریفرنس میں 8 ملزمان کے نام شامل۔ نیب نے ریفرنس کے تمام ملزمان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی حد تک وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کر لیا گیا۔ نیب کی جانب سے دائر ریفرنس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے علاوہ بشرا بی بی، فرحت شہزادی، شہزاد اکبر، بیرسٹر ضیاء المصطفیٰ اور زلفی بخاری کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل سردار مظفر عباسی نے تفتیشی افسر میاں عمر ندیم کے ہمراہ ریفرنس دائر کیا۔ احتساب عدالت کے رجسٹرار آفس نے ریفرنس کی جانچ پڑتال شروع کر دی۔ نیب نے آئی جی پنجاب کو ملزمان کی گرفتاری کی تعمیل کے لیے ہدایت کر دی۔ نیب نے ریفرنس میں نامزد ملزمان شہزاد اکبر، ضیاء المصطفیٰ، فرحت شہزادی اور سید ذوالفقار بخاری کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی پہلے سے گرفتاری پر تعمیل ہو چکی ہے اور چیئرمین پی ٹی آئی اس وقت جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل میں ہے۔ نیب نے کرپشن، بدعنوانی اور اختیارات کے ناجائز استعمال پر ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ ریفرنس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف 59 گواہان کی فہرست بھی شامل کی گئی ہے۔
चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल का वजारत कानून का नोटिफिकेशन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में जमा करा दिया गया। आज समाअत जेल में होगी। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के प्रोडक्शन ऑर्डर से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत भी आज तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस अडियाला जेल में समाअत का वजारत कानून और इंसाफ का नोटिफिकेशन अदालत में जमा। मुकदमे की समाअत जेल में होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने जुडिशियल कम्प्लेक्स में साइफर केस की समाअत की। बैरिस्टर तैमूर मलिक ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की अदालत पेशी पर दलाइल देते हुए कहा कि रात तक इल्म न था कि अदालत कहाँ लगेगी। जज ने अदालती अमले से कहा कि जब तक नोटिफिकेशन आता है इंतजार कर लेते हैं, जिसके बाद अदालत ने बताया कि वजारत कानून का नोटिफिकेशन अदालत में जमा हो चुका है। बैरिस्टर तैमूर मलिक ने कहा अगर 9 बजे अदालत लगनी थी तो चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को पेश करना चाहिए था। वकील सिकंदर जुल्करनैन बोले आपका गुज़िश्ता जेल ट्रायल वाला ऑर्डर कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 28 नवंबर का ऑर्डर पढ़ें, तमाम बातों का जवाब मिल जाएगा। पीटीआई वकील बोले चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी मुकर्रर थी, इस बात पर क्या कहेंगे। जज ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इतला करनी थी और वजारत कानून के नोटिफिकेशन का इंतजार था। वकील ने कहा हम इंतजार कर लेते हैं, आप मुल्जिमान को जुडिशियल कम्प्लेक्स में पेश करवा दें। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की एमन फील्ड रेफरेंस में सजा कलअदम करार देते हुए बरी करने का हुक्म दे दिया। फ्लैगशिप रेफरेंस में भी नैब की अपील वापस लिए जाने की बुनियाद पर खारिज कर दी गई। अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील पर समाअत के लिए 7 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ। साबिक वजीर आजम एवन फील्ड रेफरेंस में बरी, फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब की अपील वापस लिए जाने की बुनियाद पर खारिज। नवाज शरीफ की अल अजीज़िया रेफरेंस में अपील पर भी बड़ी पेशरफ। समाअत के लिए 7 दिसंबर की तारीख मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच केस सुनेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने एवन फील्ड और फ्लैगशिप रेफरेंस में अपीलों पर मुख्तसर फैसला जारी करते हुए कहा कि एवन फील्ड रेफरेंस के मुख्तसर तहरीरी फैसले में कहा गया है कि मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की बरियत के फैसले में इस अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी थी। अदालत ने ऑब्जर्वेशन में कहा था नैब के पास नवाज शरीफ के खिलाफ केस साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी शवाहिद मौजूद नहीं है। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की बरियत के फैसले को कहीं भी चैलेंज नहीं किया गया। बरियत की वजूहात का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। नैब की तरफ से अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने के लिए दायर अपील पर भी 7 दिसंबर को ही समाअत होगी। दुनिया न्यूज़ की 15वीं सालगिरह के मौका पर दुनिया न्यूज़ के हेड ऑफिस और ब्यूरो ऑफिस में तकारीब का इनेकाद किया गया। मौजूद मेहमानों ने शिरकत करके सालगिरह के केक काटे और दुनिया न्यूज़ की मैनेजमेंट और कारकुनान के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। दुनिया न्यूज़ की कामयाबी के 15 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में दुनिया न्यूज़ के ऑफिस में तकरीबात का इनेकाद किया गया। हेड ऑफिस लाहौर में मुनक्किदा तकरीब में दुनिया न्यूज़ के कारकुनान ने मिलकर 15वीं सालगिरह का केक काटा। इस मौके पर कारकुनान की जानिब से इस अज़्म को दोहराया गया कि दुनिया न्यूज़ हमेशा की तरह सहाफ़ती इक़दार को मलहूज़ खातिर रखेगा। इस्लामाबाद ब्यूरो ऑफिस में मुनक्किद होने वाली तकरीब में निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और निगरान वज़ीर मज़हबी अमूर अनीक अहमद ने शिरकत की। मेहमानाने खुसूसी ने दुनिया न्यूज़ के स्टाफ के साथ केक काटा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने दुनिया न्यूज़ के 15 साल कामयाब सहाफ़ती सफर की तारीफ करते हुए कहा दुनिया न्यूज़ ने अपने आगाज से अब तक अपने मयार को कायम रखा और इस उम्मीद का इज़हार किया कि दुनिया न्यूज़ का ये सफर मुस्तकबिल में भी यूं ही जारी रहेगा। दुनिया न्यूज़ की शुरुआत से लेकर आज तक जो प्रोग्रामिंग का जो मयार है वो वक्त गुजरने के साथ बेहतर होता चला गया है, चाहे वो ख़बरें हों, चाहे जो हालात हाज़रा के प्रोग्राम हों, चाहे तफरीही प्रोग्राम हों, तो उन तमाम प्रोग्रामों का मयार बेहतर हुआ है। निगरान वजीर मज़हबी अमूर अनीक अहमद का कहना था कि दुनिया न्यूज़ की कामयाबी में चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद के विजन का कलीदी किरदार है। खुसूसी तौर पर शहरियों को दीन से मुतालिक मालूमात देना इंतहाई अहम है। एक शख्स है जिसका नाम है मियां आमिर महमूद, जो खुद भी कुरान पढ़ता है, जो अपने अंदर कुरान करीम को उतारता है, और वो आदमी ये चाहता है कि कुरान शान नुज़ूल से लेकर लम्हे मौजूद तक जुड़ जाए। उन्होंने अपने प्रोग्राम जो भी हुए और हो रहे हैं दुनिया टीवी पर, उन्होंने कुरान करीम की तालीमात को फ़रोग़ दिया और ये काम इंतहाई संजीदगी के साथ वो कर रहे हैं।
कराची ब्यूरो ऑफिस में भी तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में दुनिया मीडिया ग्रुप के प्रेसिडेंट कामरान खान, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी भी शरीक हुए। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का कहना था कि दुनिया न्यूज़ की कामयाबी बेहतरीन टीम वर्क का नतीजा है। दुनिया न्यूज़ जो है वो बहुत अहम खबरें ब्रेक भी करता है और मैं समझता हूँ जब से कामरान खान साहब ने दुनिया न्यूज़ ज्वाइन किया तो उसमें और 4 चांद लग गए। लेकिन दुनिया न्यूज़ की टीम बहुत बेहतरीन है और दुआ गो हूँ कि इसी तरह ये अपनी मजीद 15 सालगिरह और मनाता रहे। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी का कहना था दुनिया न्यूज़ ने इब्तदा से ही आला सहाफ़ती इक़दार और बर वक्त खबर देने की रवायत को बरकरार रखा और उम्मीद का इजहार किया कि मुस्तकबिल में भी दुनिया न्यूज़ अपनी रवायात को बरकरार रखेगा। दुनिया न्यूज़ आया था तो बहुत ही कम अरसे में दुनिया न्यूज़ ने अपना मकाम बना लिया था और फिर उसके बाद जो 15 बरस गुजारे हैं वो बड़ी कामयाबी से गुजारे हैं और इस वक्त पाकिस्तान के जो टॉप न्यूज़ चैनल्स हैं उसमें दुनिया न्यूज़ का शुमार होता है और अल्लाह करे सफ़र इसी तरह जारी रहे, आपको और कामयाबियाँ मिले और आप पाकिस्तान के लोगों तक, दुनिया के लोगों तक सच खबरें पहुँचाते हैं। पेशावर में होने वाली तकरीब में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने दुनिया न्यूज़ की सालगिरह का केक काटा। मुजफ्फराबाद में भी होने वाली तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक समेत सियासी और समाजी शख्सियात और सहाफ़ियों ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने दुनिया न्यूज़ की टीम को मुबारकबाद पेश की। दुनिया न्यूज़ चैनल प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दुनिया में एक इंतहाई खूबसूरत इजाफा है। चैनल्स पर मुख्तलिफ तरफ़ैन की जानिब से जानिबदारी का इल्ज़ाम भी लगता है, लेकिन दुनिया न्यूज़ ने मियाना रवि के साथ सारे शोबाए ज़िंदगी को कवर किया है। सालगिरह की तकरीब में शरीक वज़रा का कहना था कि पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंडस्ट्री में दुनिया न्यूज़ को एक मुनफरिद मकाम हासिल है और इस उम्मीद का इज़हार किया कि आइंदा आने वाले सालों में भी दुनिया न्यूज़ अपनी आला इक़दार को बरकरार रखेगा। शुरका तकरीब का ये भी कहना था कि दुनिया न्यूज़ ने मसला कश्मीर को उजागर करने और कश्मीरी आवाम की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाने में नुमायां किरदार अदा किया। माह नवंबर का आखिरी हफ्ता भी आवाम के लिए भारी रहा। महंगाई की शरह में खातिर खा कमी न आ सकी। एक हफ्ते के दौरान 13 अशिया ज़रूरियात महंगी हुई, 14 की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। अदारा शुमारियात ने महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी। रवां हफ्ते महंगाई की शरह में 0.23% की मामूली कमी, लेकिन हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह 41% की बुलंद सतह पर बरकरार। एक हफ्ते के दौरान 13 अशिया ज़रूरिया मजीद महंगी हो गयी। अदारे शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक रवां हफ्ते प्याज 22 रुपए 68 पैसे फी किलो, लहसुन 13 रुपए फी किलो से जायद महंगा हुआ। दाल माश 3 रुपए 49 पैसे, दाल मसूर 1 रुपया 50 पैसे फी किलो से जायद महंगी हुई। इदारे शुमारियात के मुताबिक रवां हफ्ते अंडे फी दर्जन 1 रुपए से जायद महंगे हुए। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में टमाटर, आलू, चीनी समेत 14 अशिया सस्ती भी हुई। टमाटर के निर्ख 28 रुपए 95 पैसे फी किलो कम हो गए, आलू 4 रुपए फी किलो और चीनी 1 रुपया 50 पैसे फी किलो सस्ती हुई। रवां हफ्ते चाय की पत्ती, घी, गंदुम का आटा भी सस्ता हुआ, जबकि ब्रेड, माचिस, कपड़ों समेत 24 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। कुछ बात करेंगे स्मोक की सूरत हाल में कदरे बेहतरी। निगरान पंजाब हुकूमत ने वक्ती तौर पर पाबंदियां ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। हफ्ता के रोज़ तालीमी इदारों को तदरीसी सरगर्मियां जारी रखने की इजाज़त। मार्केटें, रेस्टोरेंट्स और कारोबारी मराकज़ हफ्ता और इतवार को मामूल के मुताबिक खुलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। पंजाब हुकूमत ने स्मोक की सूरत हाल के तनाजुर में वक्ती तौर पर पाबंदियां ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। इदारे, मार्केटें, बाजार, रेस्टोरेंट्स और बिजनेस हाउसेज हफ्ता और इतवार को मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। हफ्ता के रोज़ तालीमी इदारों को तदरीसी सरगर्मियाँ जारी रखने की इजाज़त। तालीमी इदारों में 18 दिसंबर से 1 जनवरी तक मौसम सरमा की तातीलात का नोटिफिकेशन भी जारी। इजलास से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर आला ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने का भी हुक्म दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि स्मोक में कमी के लिए जो कुछ इंसानी बस में है वो इकदाम उठा रहे हैं। पूरी कोशिश है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कम से कम रहे। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने बताया कि आइंदा हफ्ते स्मोक की सूरत हाल का दोबारा जायजा लिया जाएगा और फिर इस हवाले से इकदाम तजवीज़ किए जाएंगे।